ये आकाशवाणी है। लीजिए प्रस्तुत है केरल में चल रहे राष्ट्रीय खेलों पर आकाशवाणी की सेंट्रल प्रोडक्शन टीम द्वारा प्रस्तुत ये विशेष कार्यक्रम केरला फ्लेवर्स। राष्ट्रीय खेल केरला 2015। आकाशवाणी की पूरी सेंट्रल प्रोडक्शन टीम आपके लिए लेकर आई है केरला फ्लेवर्स। नमस्कार, महेंद्र सिंह लालस्का। मित्रों, 35वें राष्ट्रीय खेल आज खत्म हो रहे हैं और केरल ने बाहें फैलाकर पूरे राष्ट्र का स्वागत किया, प्रेम दिया, सम्मान दिया। प्रेम से याद आई केरल की कुछ प्रेम कथाएं। माधवी रविंद्रनाथ के साथ एन वासुदेव। Kerala history and literature has some really interesting stories of love and passion such as Minitanga, Chemin, Indulekha, Ramanan. പാടില്ല പാടില്ല നമ്മെ നമ്മൾ പാടേ മറന്നൊന്നും ചെയ്തുകൂടാ. G. Jaya with a story dear to the heart of Malayalis. Ramanan by Changambura. Ramanan, the poetical work by Changambura, is the emotional build-up of the passion of a poor shepherd boy, Ramanan, and a rich girl, Chandrika. The shepherd boy, always aware of his limitations when compared to Chandrika, discouraged her whenever she wanted to accompany him. Ramanan, the poetical work by Changambura, is the emotional build-up of the passion of a poor shepherd boy, Ramanan, and a rich girl, Chandrika. The shepherd boy, always aware of his limitations when compared to Chandrika, discouraged her whenever she wanted to accompany him. This literary work has a tragic end, and finally, disappointed with Ramanan's attitude, Chandrika decides to accept her parents' will and gets married to a person of their choice. On the very same day, heartbroken, Ramanan hangs himself. പ്രേമിച്ചു പ്രേമിച്ചു നിന്നെ ഞാനൊരു ദേവസ്ത്രീയാക്കും, കാടായ കാടുകൾ മുഴുവൻ ഞാനൊരു കതിർമണ്ഡപമാക്കും. പ്രേമിച്ചു പ്രേമിച്ചു നിന്നെ ഞാനൊരു ദേവസ്ത്രീയാക്കും. एक पखवाड़े के इन खेलों के हर लम्हे को आप तक पहुंचाने की हमने पूरी ईमानदारी से कोशिश की। क्यों न अलविदा कहने से पहले हमारी टीम के सदस्यों से एक मुलाकात कर लें। हाय, मैं मीनू खरे। 35वें राष्ट्रीय खेलों की कवरेज के लिए मैं लखनऊ से यहाँ पर आई कोच्चि। केरल में मुझे जो चीज सबसे अच्छी लगी वो यहाँ की डाइवर्सिटी है। यहाँ की क्विजीन में भी डाइवर्सिटी है। इडियप्पम, अप्पम, कडला, पोट्टू, न जाने कितनी चीजें हैं। Hello, I am Hegrizam Surjit from Imphal. I have come here at Kochi as a part of our central team for coverage of All India Radio. The natural beauties here, full of coconuts and the beaches. It's a very, very, very nice place. आकाशवाणी मुंबई से मैं दिनेश जाबुलकर। केरला का प्राकृतिक सौंदर्य मुझे बहुत पसंद आया। सही मायने में ये गॉड्स ओन कंट्री है। I am Nitish Arora, Radio Kashmir, Jammu. Starting off from my place in heavy woolens, the steep hike in temperature here was compensated by the warmth in heart of average Keralite. You ask for an inch and they would go a meter to help you. And yes, I was also enchanted by a day-long cruise on the backwaters from Kollam to Alappuzha. डॉक्टर राजेश्री बैनर्जी, गोरखपुर से आई हूँ। मेरी ड्यूटी कोची में लगी हुई है। बहुत ही खूबसूरत है, इतनी ग्रीनरी है कि बहुत ही खूबसूरत। पर्यावरण संरक्षण किस तरीके से यहाँ पे लोग कर रहे हैं वो समझने की बात है। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी वो है लेडीज़, जो साड़ी क्लैड लेडीज़ बहुत ही खूबसूरत साड़ियाँ ये पहनती हैं। स्पेशली केरल की जो स्पेशल साड़ी होती है क्रीम कलर की विद गोल्डन बॉर्डर। नमस्कार, मेरा नाम सुप्रियो मुखोपाध्याय है। केरला में मुझे यहाँ के लोगों की कला, संस्कृति एवं जीवन शैली ने खूब प्रभावित किया। उसके साथ साथ यहाँ की हरी भरी प्रकृति भी मन को छू गई। I'm Florin Roche. I'm from Mangalore and I've been stationed here in Thiruvananthapuram. I would like to put on record here that it has been a wonderful experience working among the best in the AR team. And what I like most about Kerala is the sporting culture. We could see people thronging to the stadiums, the various venues, and also lined up on street to cheer the people. And I really like the overall atmosphere.
I'm Andrew from Delhi and I've been stationed in Thiruvananthapuram. It has been a wonderful experience for me these 15 days of my stay over here. I've enjoyed the Kerala cuisine, especially the avial, something which is very rarely cooked in my house because I hardly know how to make it. But I was really craving to have this dish that is avial, and it's one of the specialities of Kerala cuisine. And then of course the other things, the people over here are wonderful. It's been a wonderful experience for me. Very cheerful people, I should say. And they've been a very sporting crowd. I should say that's why it's called God's own country. Hello, this is Ramesh from Chennai. The moment I stepped into this city, Kochi, what struck me was the discipline of these people. Though it is also like any other big city, it is crowded. Traffic is also, it's very, very, very thick. But people are moving in a disciplined way. And another thing that struck me was the importance that these people give to the heritage and culture. You can see very old synagogues. You can see very old temples. I'm Seshadri Srinivasan coming from Bangalore. It's a lovely place, you know, it's what we call as God's own creation, and lots of greenery, lots of beaches, highly literate state, and what more you need? Well, I'm Sridhar. I'm from Bangalore. I work in Bangalore actually. It's been a nice place and it was nice working for National Games. I really enjoyed. I'm Sanjeev Dosaj and I was placed at Thiruvananthapuram. Kerala is so green and so green, I love it. Mihir Mehta from All India Radio Bhuj. What struck me most about Thiruvananthapuram and Kerala in general was clean streets and no stray dogs anywhere in the city, and of course a beautiful example of traffic discipline over here. मैं अश्विनी कुमार चंडीगढ़ से पहली बार मैं केरल आया हूं और केरल के लोग मुझे बहुत अच्छे लगे। हमारी ड्यूटी लगी है यहाँ कोची में और यहाँ जो आर्किटेक्चर है उसे भी संजो कर रखा गया है। लगून से इसका नाम कोची पड़ा है कहा जाता है और कोची सुंदर है, देखने वाली जगह है। मैं पाव बुरा है, इम्फाल से आए हैं हम। साउथ के लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। केरला तो आदमी बहुत अच्छा है, आने जाने के लिए, गाइड करने के लिए सब आदमी लोग पोलाइट हैं। हम बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा टीम के साथ भी हम बहुत शुक्रिया। मैं अभिनय श्रीवास्तव, मैं इलाहाबाद से आया हूं और मेरा डिप्लॉयमेंट तिरुवनंतपुरम में था। और जो सबसे खास बात मुझे लगी, जो हम नॉर्थ में मिस करते हैं, हरी हरी वसुंधरा। मैं सुधीर अजय हूँ, दिल्ली स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो से। केरल के बारे में जो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पसंद आई, खूबसूरती के अलावा यहाँ का डिसिप्लिन, और यहाँ जिस तरह से रूल्स को फॉलो करते हैं, लोग डिसिप्लिन में रहते हैं, बहुत ही खुशमिजाज लोग हैं, हमेशा स्माइलिंग। मैंने आज तक कभी भी दिल्ली की तरह यहाँ तो रूट पर बहुत ज़्यादा हॉर्न्स बजते हुए या कभी भी कोई प्रॉब्लम होते हुए या सिग्नल पर किसी को एक दूसरे से झगड़ते हुए नहीं देखा। I am Venkatram from All India Radio Coimbatore. What appeals to me is that in this era of fast eroding values, I love the Keralites for upholding traditions like wearing of dhotis and saris and observing major Malayalam festivals by all communities. I am Humayun Kaisar. I have come from Kashmir and I have been in Thrissur for some days now, and I didn't find any traffic cop on the road, but still I am amazed how patiently and how well people drive here. There are no races on the road. All people have patience and they don't blow horn. You don't hear a horn also here. So I salute the spirit of those who drive cars and vehicles here and maintain a discipline on road. मैं राजीव रंजन श्रीवास्तव पटना से आया हूँ। त्रिशूर में जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी वो है यहाँ की साफ सफाई। हेलो, मैं हूँ रजत सेनगुप्ता, दिल्ली से आया और केरला में खो गया यहाँ की सुंदर साफ सुथरी सड़कों में, जो कहीं कोझिकोड शहर की गलियों में बिखर जाती हैं तो कहीं अरब सागर के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर दूर तक चलती हैं। जहाँ कोझिकोड के हजारों लोग हर शाम डूबते सूरज को धीरे धीरे अपार सागर के पीले चमकीले पानी में अस्त होते देखने आते हैं। जैसे कि ये उनका शौक नहीं, कुदरत के इस हर रोज होने वाले वाकये की इबादत का एक तरीका है। जी बेशक, मैं यहाँ आकर खुश हूँ, मुतासिर हूँ, प्रभावित हूँ। केरला के लोगों की सहज सरल जीवन शैली को देख के, खेलों के लिए इनके दिल में एक बड़ी सी जगह देखकर और इंसानियत के नाते हर किसी के लिए इनके मन में सद्भावना को देखकर, इन मामूली से लगने वाली बेशकीमत बातों को फिर कभी करीब से देख पाऊंगा, यही उम्मीद करता हूँ।
उड़ीसा से हूँ और मुझे केरल बहुत अच्छा लगता है। उड़ीसा और केरल में कितना समानता है, देखने में ताज्जुब लगता है। उड़ीसा और केरल दोनों भगवान विष्णु के जगह हैं। वहाँ जगन्नाथ जी भोजन करते हैं और यहाँ श्री पद्मनाभ स्वामी शयन करते हैं। सोचिए, वहाँ लंबे रेतीले समुद्र तट हैं, तो यहाँ भी समुद्र तट है। वहाँ भी बहुत सारे नारियल के पेड़ हैं, यहाँ भी नारियल के पेड़ हैं। वहाँ भी हम चावल दाल मछली खाते हैं, यहाँ भी चावल दाल और मछली खाते हैं। वहाँ ओडिसी नाच है, तो यहाँ पर मोहिनीअट्टम थयम है। खान पान, रहन सहन, कला, संस्कृति, कितने समानता है। हेलो, मैं हूँ आनंद सिंह उद्दीप, आकाशवाणी भोपाल से। भारत का हृदय प्रदेश है, वहाँ तो चारों तरफ भूखंड हैं, ऐतिहासिक धरोहर हैं। यहाँ आके मैंने देखा समुद्र की अथाह विशालता। सचमुच कितनी विशाल है ये समुद्र, काश हमारा दिल भी इतना विशाल होता। मैं प्रशांत पेहेकर, आकाशवाणी मुंबई से। तो रियली सही मायने में हमने बीच को एंजॉय किया। मैं शक्तिधर ध्यानी, मैं दिल्ली से आया हूँ। यहाँ केरला त्रिवेंद्रम में ग्रीनरी है, नारियल के पेड़, कटहल के पेड़, तरह तरह के केलों के पेड़ हैं यहाँ पे, जो कि हमें बहुत अच्छे लगे और इनके जो डिशेज हमने खाई वो भी बहुत अच्छी लगी। मैं नरेश कुमार गुप्ता दिल्ली से आया हूँ और केरल में स्पेशली त्रिवेंद्रम में आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ का वातावरण, यहाँ के लोग और यहाँ के एनवायरनमेंट। मैं अंजय मिश्र दिल्ली से। यहाँ पर मुझे सबसे अच्छा लगा कोवलम का बीच, लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड, पूरे केरला वासियों का पॉजिटिव एटीट्यूड और साथ में उन सब की पॉजिटिव एनर्जी, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं दशरथ प्रसाद दिल्ली से केरल आया हूँ। यहाँ केरल में मुझे सबसे अच्छा यहाँ के लोगों का व्यवहार, यहाँ की डिसिप्लिन, यहाँ का वातावरण पसंद आया। मैं हूँ शिबू जॉर्ज और मैं आया हूँ पोर्ट ब्लेयर से। मुझे पसंद है केरल में सबसे ज्यादा यहाँ के नारियल पेड़, यहाँ के समुद्री तट, हाँ ऑफ कोर्स बैक वाटर्स। Hello, I'm Timtin Diba from Kohima, Nagaland. I like the place. I love the people. I enjoy the food. Thank you. When I came, the place was a strange land. But as I stay, friendly people, delicious food, and beautiful places. Yes, it's God's own country, Kerala. മണ്ണിൽ പതിയും ഈ സൂര്യമിഴിവിടെ, മണ്ണിൽ പിടയും ഈ തുള്ളി ജലമിവിടെ, മണ്ണിൽ പതിയും ഈ സൂര്യമിഴിവിടെ, മണ്ണിൽ പിടയും ഈ തുള്ളി ജലമിവിടെ, നെഞ്ചിൽ ഒരു നറുതളിരുകൾ വെറുതെ വെറുതെ തീരാതെ പെയ്യും മണ്ണിൽ മായുവതെന്തിനോ ഏതിനോ പോകാമീ ദൂരം നീളെ തേടുവതാരെയോ ആരെയോ മണ്ണിൽ പതിയും ഈ സൂര്യമിഴി। मेरा नाम राकेश जैन है और इन राष्ट्रीय खेलों में सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि यहाँ की जो खेल भावना है उसने बहुत आकर्षित किया। मैं हूं अनुपम पाठक और इसके पहले भी मैंने आकाशवाणी के लिए कई सारे राष्ट्रीय खेल उनका कवरेज किया है। लेकिन जिस चीज़ का जिक्र मैं यहाँ करना चाहता हूँ वो ये है कि मैंने यहीं पर देखा कि सड़क पर आप जाइए, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, सबके हाथ में मोबाइल नहीं दिखता है। मैं मुकुल गोस्वामी। इन राष्ट्रीय खेलों में जो सबसे अच्छी बात लगी वो मैंने जो दृश्य देखे, यहाँ स्कूलों के आगे हजारों लड़कियां बाहर खड़ी हुई हैं और जैसे ही बसेस, जो लोकल सरकारी बसें आती हैं, जिस तरह से वो झपटती हैं, ये दृश्य राजस्थान में कभी सोचने के लिए भी नहीं मिल सकता, क्योंकि अक्सर लड़कों की भीड़ हमने टूट पड़ते हुए देखी है। इतने बच्चे और लड़कियां अगर पढ़ाई के लिए इंटरेस्टेड हैं तो सैल्यूट टू केरला। मैं हूं आपका मेजबान महेंद्र सिंह लालस। आपके प्रेम से सराबोर हूं और वादा करता हूं अपने ज़हन से केरल को कभी दूर नहीं होने दूंगा। और अब बारी हमारी टीम के कप्तान कुलविंदर सिंह कंग की।
35वें राष्ट्रीय खेलों में आकाशवाणी की सेंट्रल प्रोडक्शन टीम की जितने भी लोग थे, 7 वेन्यू पर सबने बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छे तरीके से रिपोर्टिंग करी और पल पल की जानकारी श्रोताओं तक पहुंचाते रहे। मैं एंटायर टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा एज ए टीम लीडर। मैंने बहुत से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को कवर किया है, देश में विदेश में कई राष्ट्रीय खेल कवर किए हैं, लेकिन इस बार जो केरल ने व्यवस्थाएं की हैं, जिस सुंदर तरीके से लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, पूरी मशीनरी, पूरा प्रशासन इन्वॉल्व हुआ है, बहुत अच्छे इंतजाम किए गए केरल प्रशासन की तरफ से और लोगों ने दिल खोलकर इसमें हिस्सा लिया, तहे दिल से स्वागत किया। और जहाँ तक केरल की बात है, उत्तर भारत में अगर हम दुकानों पर जाते हैं, इडली या डोसा, इसके लिए हम दुकानों को ढूंढते हैं, यहाँ पर हर जगह इनकी बहार थी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही नेचुरल और बहुत ही फ्रेश हमें खाने को मिले, बहुत अच्छा लगा। मैं महानिदेशक आकाशवाणी की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, राष्ट्रीय खेलों के आयोजन समिति के जो अध्यक्ष हैं और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं इतने अच्छी व्यवस्थाएं करने के लिए और बधाई देता हूं इतने सफल खेलों का आयोजन करने के लिए। मित्रों, राष्ट्रीय खेलों की गाड़ी आज से चल पड़ेगी गोवा की ओर, जहां खेले जाएंगे 36वें राष्ट्रीय खेल। It has been a journey of triumph, success, glory, rewards, recognition, praise and satisfaction for both the officials and the athletes in the last 15 days at the 35th National Games held at Kerala. God's own country. Thousands of athletes from Kashmir to Kanyakumari took part in these games to showcase their talents. It can be rightly said that these national games have been the single unifying factor for Indians in the true spirit of India's unity in diversity. 29 venues across 7 districts of Kerala witnessed the best of action in 33 disciplines. Apart from being a generous host, Kerala has been commended for the way in which it conducted the games and also for the true sportsmanship exhibited by Keralites. They thronged to various venues, stadiums and lined up on the streets where competitions were scheduled day after day and cheered the participants. As we say goodbye to Kerala, the memories of this magical land, its beautiful backwaters, the lush green landscapes, the evergreen coconut groves, its diverse culture and cuisine, and its mystical traditions are sure to linger in our minds for a long time to come. The journey from coastal Kerala's silvery beaches will continue in coastal Goa, where the next national games are scheduled. It is a sojourn from the backwaters of Kerala to the land of sun, sand and sea. Goa, the land of fun and frolic, the land of passion, another land of coconut palms, the land of exotic beaches and much more. Being a home to 39 gorgeous beaches, Goa is known the world over as the beach destination. Apart from the beaches, Goa has rich history, traditions, and of course, the melodious sounding Konkani language spoken by Goans will be music to your ears. It's time to say Go Goa. It is sure to charm its way to your heart and mind. Ami Tumi, Goa Bhetya, Florine Roche and Pankaj Athavale for All India Radio. फिर मिलेंगे गोवा में। इस वादे के साथ भारी मन से मैं महेंद्र सिंह लालस कहता हूं आपको अलविदा और नमस्कार। राष्ट्रीय खेल केरला 2015। केरला फ्लेवर्स। अभी आप राष्ट्रीय खेल केरल पर निर्मित यह विशेष कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रस्तुतकर्ता महेंद्र सिंह लालस, परिकल्पना और निर्देशक कुलविंदर सिंह कंग। आकाशवाणी की सेंट्रल प्रोडक्शन टीम द्वारा तिरुवनंतपुरम पर तैयार यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।